بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا۔ حاضرین گرامی، سورۃ الکہف قرآن مجید کی عظیم سورتوں میں سے ایک اہم سورہ ہے۔ جمعہ کے روز جس کی تلاوت کار خیر و برکت ہے، ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک کے لیے نور روشنی کا ذریعہ ہے۔ سورۃ الکہف میں اللہ تعالیٰ نے بہت اہم پیغامات دیے ہیں۔ میں آپ کے سامنے مختصراً صرف 4 واقعات رکھتا ہوں اور ان سے حاصل ہونے والے دروس و عبرتیں کیا کیا ہیں۔ حاضرین، سورۃ الکہف کا پہلا واقعہ ہے اصحاب کہف کا، اور اسی سے اس کا نام ہے سورۃ الکہف۔ کہف کے معنی ہے بڑا غار، کیو جو تھوڑا سا بڑا ہو اس کو کہف کہا جاتا ہے، اور کیو جو تھوڑا سا چھوٹا ہو، گفا ہو، اس کو غار کہتے ہیں۔ غار چھوٹا ہوتا ہے اور کہف تھوڑا بڑا ہوتا ہے۔ اصحاب کہف کا واقعہ آپ نے سنا ہے بارہا کہ اس میں ایک ظالم بادشاہ اور ایک عادل بادشاہ، ایک انصاف پسند بادشاہ اور ایک ظالم بادشاہ کا واقعہ ہے۔ ظالم بادشاہ دقیانوس، جس نے اصحاب کہف پہ ظلم ڈھایا، یہ ہوا۔ اور دوسرا انصاف پسند بادشاہ جو کہ ذوالقرنین، اللہ نے دونوں کا تذکرہ کیا۔ ایک ظالم بادشاہ جس نے اپنی سلطنت، طاقت، قوت، بادشاہت، وحدہ، منصب کا غلط استعمال کیا، نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے اس کو ختم کیا۔ اور ایک بادشاہ جس نے اپنی طاقت، قوت، سلطنت اور ثروت کا صحیح استعمال کیا اور ظالموں کا قلع قمع کیا، یاجوج و ماجوج کو ختم کیا، اور رہتی دنیا کے لیے اس کا ایک بہترین ذکر خیر ہے کہ یاجوج و ماجوج کے ظلم و ستم سے اس نے لوگوں کو نجات دیا۔ اور 2 واقعات ہیں، ایک ناشکرہ آدمی کا جس کے پاس باغ ہے، بہترین مال و متاع ہے، دولت ہے، اس کو اپنے باغ دولت پہ ناز ہے، غرور ہے، گھمنڈ ہے، اللہ نے اس کے نتیجے میں اس کو تہس نہس کیا۔ اور اسی طرح سے ایک نبی، بلکہ دونوں نبی، راجح قول کے مطابق دونوں نبی موسیٰ اور خضر علیہم السلام کا واقعہ۔ اصحاب کہف جو کہ چند نوجوان تھے، تو سب سے پہلا پیغام ہے نوجوانوں کے لیے، کیونکہ نوجوان کسی قوم کی علامت ہے، وہ کسی قوم کی آئیڈینٹی ہوتی ہے۔ جس قوم کے نوجوان آگے وہ قوم آگے، جس قوم کے نوجوان لکھے پڑھے ہو وہ قوم لکھی پڑھی ہے، جس قوم کے نوجوان ہر چیز میں آگے ہیں وہ قوم آگے ہیں، اور جس قوم کے نوجوان پیچھے ہیں وہ قوم پیچھے ہیں۔ اس واقعے میں نوجوانوں کا بڑا کردار ہے، اور نوجوانوں سے خطاب کر کے فرمایا اِنَّهُمْ فِتْيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدًى۔ وہ نوجوان ہی تو تھے، چند نوجوان ہی تو تھے جو ایمان لے کر آئے اور وقت کے ظالم بادشاہ کے سامنے ڈٹ گئے۔ ایمان کے راستے میں آزمائش، تکلیف، پریشانی آنی ہے۔ آخرکار وہ لوگ غار میں جا کے چھپ گئے، اور نیک لوگوں کی صحبت، ان کی سنگت کا اتنا فائدہ ہوتا ہے۔ اصحاب کہف کے ساتھ ایک کتا گیا، نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھا، اس کتے کا نام قرآن میں ذکر خیر کے ساتھ آیا، اور قیامت تک وہ نام آئے گا۔ اگر ایک کتا بھی نیک لوگوں کے ساتھ رہتا ہے اس کا بھی بھلا ہوتا ہے۔
अच्छे लोगों की संगत इख्तियार करनी चाहिए और बुरे लोगों की संगत इख्तियार करने से नुकसान ही होता है, फायदा नहीं होता है। गार में ये लोग कितने साल थे? 309 साल। 309 साल। सलासमिया, उसके बाद का वस्दादो तिसआ, 300 फिर 9 ज्यादा, 300 फिर 9 ज्यादा, 309 साल तक थे। एक क्वेश्चन पहले, ये जो असहाब कहफ है, ये लोग अल्लाह के वली है कि नहीं है? अल्लाह के वली है कि नहीं है? अरे भाई, अल्लाह ने जिनकी इतनी हिफाजत की, उनका जिक्र खैर किया, अब कहते हुए डवाडोल हो रहे हैं, पता नहीं अल्लाह के वली है कि नहीं है। और आयरे गायरे नत्तु खैरे क्या क्या शाह लगा लेते हैं, और उसके बाद हो तो पहुंचे हुई सरकार है, फट से बोलते हैं अल्लाह के वली, औला अला इल्ना अवलिया अल्लाह। ये अल्लाह के वली जिनका जिक्र कुरान में आया है ना, अल्लाह के वली है ना, कोई शक है? बिल्कुल नहीं। 309 साल के बाद अल्लाह ने इनको जिंदा करके पूछा कितने साल थे? उन्होंने क्या कहा? आधा दिन या एक दिन? हाँ, ये भी सुबह में आए थे, शाम का वक्त, या शाम में आए थे, अभी जो सुबह का वक्त है, जबकि 309 साल थे। गायब का इल्म इनको हुआ, मरने के बाद, कब्र में जाने के बाद इल्म हुआ। अल्लाह के वली थे कि नहीं थे ये, है ना? तो जाहिर सी बात है, वलियों को भी मरने के बाद पता नहीं चलता है, गायब की खबर उनको भी नहीं है। ये असल बताना चाहता हूं मैं, ठीक है? उसके बाद नौजवानों से अहम पैगाम, जब उठे ये लोग 309 साल के बाद, क्या एहसास हुआ? भूख लग रही थी, इतने सालों से वहां पड़े हुए हैं, भूख लग रही थी। उनके दिमाग में क्या है? यही तो एक दिन का वाकया होगा, सुबह में आए थे, शाम का वाकया, बादशाह है, कहीं हमें पकड़ ना ले। इससे मालूम होता है कितना नेक परहेजगार क्यों ना हो, साथ साथ एहतियात जरूरी है। हाँ, ऐसे नहीं भाई हम मोमिन हैं, मुसलमान, अल्लाह हिफाजत करेगा। अल्लाह हिफाजत करेगा, लेकिन हमें सोर्स अपनाना है। ये लोगों ने क्या कहा? जाओ, जरा छुपते छुपते जाओ और जाकर देखो कोई तुम्हें महसूस ना कर ले, कोई तुम्हें महसूस ना करे। जाओ, वला इशअरन्ना बिकुम अहदा, किसी को तुम्हारे बारे में पता ना चले, एहतियात करना है ना। और क्या किया उन्होंने? एक को भेजा, सब नहीं गए, पूरे के पूरे नहीं गए, एक को भेजे। दावत और तबलीग में याद रखिए, इंडिविजुअल मीट जितना करते उतना फायदा है। आप शहादा करा रहे हैं यूट्यूब में, वीडियो चैनल, ऑडियो में, इसमें उसमें, लोगों की आंखें लाल होती है, ये हिकमत का तकाजा नहीं है। एक इंडिविजुअल करो, उसी में फायदा है, और न लोगों की निगाहों में आ जाओगे, ठीक है? हर चीज, नबी को भी अल्लाह ने कहा दावत और तबलीग का काम शुरू में 3 साल तक छुप छुप कर करो, कहा, यह हिकमत का तकाजा। उसके बाद भेजते हुए क्या कहा मालूम है? ये सिक्का लेकर जाओ, फलयंदुर, और ये देखें, अय्युहा अस्का तआमा, कि सबसे हलाल और पाकीज़ा ग़िज़ा किसकी है वो लेकर आओ। जिस दिन नौजवान जिस कौम के हलाल कमाई और हलाल खोर बन जाएंगे, उस कौम के नौजवान खुददार होंगे। और नौजवान जिस कौम के हराम खोरी में मुब्तला हो, उनकी खुददारी खत्म हो जाती है। हराम खोरी की वजह से, हराम कारी की वजह से जमीर, दिल मुर्दा हो जाता है। इसीलिए बहुत जरूरी है हलाल कमाई की तरफ जाएं। ये पैगाम है इनके वाकयात से कि अल्लाह ने इनकी हिफाजत फरमाई और जालिम हुक्मरान को, बादशाह को खत्म किया है। और उसके बरक्स एक वाकया है जो कि उसके बरक्स बता देता हूं, यह आखिरी वाकया, लेकिन पहले बता देता हूं जुल्करनैन का वाकया। इंसाफ पसंद बादशाह जुल्करनैन के बारे में लोगों में मशहूर है कि वो अलेक्जेंडर है, गलत है। जिसको
अलेक्जेंडर द ग्रेट कहा जाता है, उर्दू में कहते हैं सिकंदर आजम, वो ईमान वाला मुसलमान नहीं था। हां, ये चित्रा दिमाग में रखें, वो ईमान वाला मुसलमान नहीं था। और कुरान ने जुल्करनैन के बारे में यहां तक कहा, बाज़ उलमा ने लिखा कि शायद वो नबी थे। ऐसे अल्फाज कुरान ने इस्तेमाल किए हैं कि वो नबी थे। कहां सिकंदर आजम, अलेक्जेंडर, और कहां जुल्करनैन, दोनों में आसमान जमीन का फर्क याद रखो। तो अलेक्जेंडर जुल्करनैन नहीं है। कर्न के माने सिंह, अरबी में कर्न के माने सिंह, जुल्करनैन के माने दो सिंह वाले। अब क्या मतलब है दो सिंह वाले? क्या उनके दो सिंह थी, या उनकी हुकूमत इतनी दूरी पर फैले हुई थी मगरिब और मशरिक, उससे यह तशबीह दी गई है कि वो जुल्करनैन है। अल्लाह बेहतर जानता है। इस सिलसिले में सबसे बेहतरीन तहकीक जिसने की है, आजाद इंडिया के फ्रीडम फाइटर, फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर कौन? मौलाना अबुल कलाम आजाद। और पक्के अहले हदीस थे, याद रखो, मौलाना अबुल कलाम आजाद पक्के अहले हदीस थे। आजाद इंडिया के पहले फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर, बड़े इल्म वाली हस्ती। उनकी तफसीर की किताब है तर्जुमानुल कुरान। जेल में बैठे बैठे उन्होंने इतनी किताबें लिखी है, हमें पढ़ने की फुर्सत नहीं है। गुबारे खातिर तस्किरा उन्होंने जेल में बैठकर, अहमदनगर के जेल में बैठकर लिखे। इतने बार अंग्रेजों ने जेल में भेजा उनको। उनकी किताब है तफसीर में तर्जुमानुल कुरान, बेहतरीन तहकीक है। शायद दुनिया में किसी ने ऐसी तहकीक की है, मैं दुनिया की बात कर रहा हूं, जबरदस्त तहकीक है। सूरह फातिहा पर उनकी किताब है उम्मुल कुरान, उम्मुल किताब के नाम से इतनी मोटी किताब है, सिर्फ सूरह फातिहा की तफसीर पे। बेहतरीन किताब है, पढ़ने से ताल्लुक रखती है। लेकिन मौलाना अबुल कलाम आजाद की उर्दू समझने के लिए आपको पापड़ बेलना पड़ेगा, याद रखो। उर्दू समझने के लिए बहुत मुश्किल और मेयारी उर्दू है। खैर, बात से बात निकल रही है। एक मर्तबा अंग्रेज के पीरियड में मौलाना अबुल कलाम आजाद के खिलाफ मुकदमा हुआ कि आपने हुकूमत के खिलाफ ये बातें कही है। उन्होंने कहा, मेरी तकरीर किसने नोट की है? कौन इसको नोट किया? वो जो नामा निगार, उसको बुलाओ और कोर्ट में मैं वही तकरीर रिपीट करता हूं, उनको बोलो कि मेरी तकरीर के कोड वर्ड वो बताएं। नहीं बता सका। वो कहते हैं कि मैं तकरीर करने खड़ा होता हूं तो वर्ड के पहाड़ मेरे सामने आ जाते हैं, बोलता जाता हूं, खत्म नहीं होता है। जबरदस्त जबान उनकी। बहरहाल ये अलग बात है। तो उन्होंने ताकीक की है जुल्करनैन के बारे में। याजूज और माजूज जो जुल्म करता था, फितने मसाद मचाता था, उनको वो पैक कर दिया है इसके पहाड़ों के बीच में। ये इसके वाकया है। उसके बाद एक वाकया है, बाग वाला, अल्लाह ने बाग दिया, सब कुछ किया, लेकिन उसने नाशुक्री की, अल्लाह ने नतीजे में उसको खत्म किया। आखिरी एक वाकया है मूसा और खिजर अलैहिस्सलाम, इन दोनों का वाकया है। इसमें बड़े लोगों की छोटी गलती भी बड़ी होती है। क्या है? बड़े लोगों की छोटी गलती भी बड़ी होती है। मूसा अलैहिस्सलाम से किसी ने पूछा कि रूए जमीन पर आपसे इल्म वाला कोई है, या कौन सबसे ज्यादा इल्म वाला है? जवाब सही है, वक्त के नबी सबसे ज्यादा इल्म वाले होते हैं, मगर अल्लाह को यह आना पसंद नहीं आया। उन्होंने कहा मैं, अल्लाह को यह पसंद नहीं आया। कहा कि आपसे बढ़ के इल्म वाले हैं। देखो, और इल्म सीखने के लिए सबर और सफर दोनों चाहिए। सबर और सफर। जब मूसा अलैहिस्सलाम खिजर अलैहिस्सलाम के पास गए तो खिजर ने क्या कहा? इन्नका लन तस्ततिअ मइय सबरा, सबर कर नहीं पाओगे। इल्म के लिए सबर बहुत जरूरी है। पढ़ने बैठेंगे शैतान बहकाएगा, नींद आएगी, ये होगा वो होगा, फला बच्चा खेल रहा, वो कूद रहा, ये कर रहा। अपने दिल को सबर बेटा, तू पढ़ ले, खेलने का वक्त बाकी है, अभी दूसरे आराम करने का वक्त बाकी है, उसको समझाओ, सबर करके जमे रहो। इन्नमा ज़फ़्रु बिस्सब्र, सबर में कामयाबी है। सबर के बगैर इल्म नहीं आएगा। और सफर, इल्म के लिए आपको बस्ती छोड़ के जाना पड़ेगा,
घर बार छोड़ के जाना पड़ेगा और तजुर्बेकार इल्म वालों के साथ रहना पड़ेगा। इल्म का फायदा तजुर्बे के बाद होता है। एक डॉक्टर एमएस पढ़ता है, कितने साल पढ़ता है भाई एमएस करने के लिए? पहले एमबीबीएस तो बने, हाँ एमबीबीएस का बोलो 5 साल एमबीबीएस, हाँ फिर उसके बाद फॉरेन सीट नहीं मिलती है, फिर पापड़ बेलना, हाँ उसके बाद नीट लिखना, ये करना वो करना, फिर कम से कम 3 साल पढ़ना है एमएस। 8-9 साल 10 साल के करीब पढ़ने के बाद जाते ही ऑपरेशन है थिएटर में चाकू कैंची नहीं देते हैं, हाँ बड़े जो सीनियर एमएस से सर्जन हैं उनके अंडर में जाना, सैर करके जा बेटा क्या कर रहा देख, क्या पाक कर, सफाई कर, फुला कर, उसके बाद सिर्फ इतना काट के सामने बैठ जा, सिर्फ सिखाते हैं। तजुर्बा एक्सपीरियंस बहुत जरूरी है मेरे भाइयों, याद रखो। इसीलिए एक्सपीरियंस बहुत मायने रखता है। आम जो आर्ट्स के फील्ड में अगर आप प्रोफेसर बनना चाहते हैं, या तो एनईटी नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट क्वालिफाइड करना, या नहीं तो आपको पीएचडी डिग्री करना, लेकिन इंजीनियरिंग फील्ड में नहीं है। आपके पास अगर एक्सपीरियंस है तो आप 10 साल 15 साल के एक्सपीरियंस रखते इक्वल टू डॉक्टरेट डिग्री। क्यों? ये एक्सपीरियंस की बहुत कीमती है, बहुत कीमती है, बहुत फायदा है। तो खिजर ने अपने तजुर्बे का फायदा इनको बताया है, यह बहुत अहम है। इसके लिए सफर और सब्र बहुत जरूरी है। अब यह कहना, कुछ लोग क्या कहते हैं मालूम है, वलियों का मुकाम नबियों से ऊंचा है, वलियों को इल्म लदुन्नी हासिल है जो नबियों को नहीं है। नारे तकबीर, क्या इस्तिदलाल। खिजर को इल्म लदुन्नी था, मूसा को नहीं। नाउज़ुबिल्लाह, गलत बात है। मूसा भी नबी है, ये भी नबी है, मूसा भी वली, ये भी वली है, दोनों। लेकिन मूसा के पास जो था वो खिजर के पास नहीं, खिजर के पास जो है मूसा के पास नहीं। तिलका रुsul फद्दलना बादहुम अला बाद, अल्लाह ने एक दूसरे को फजीलत दी है, लेकिन ये इस्तिदलाल गलत है। इन वाकयात से हमारे लिए इबरत यह है, अल्लाह ने सूरा कहफ शुरू किया अलहम्द, तारीफ से यानी तौहीद से, खत्म किया रिसालत से। फमन कान यरजु लिक़ा रब्बी फलयअमल अमलन सालिहा। रब से मुलाकात चाहते हो, नेकियों का फायदा चाहते हो, शिर्क से बचकर तौहीद के साथ सुन्नत रसूल के मुताबिक अमल करो, नेक अमल, रब से मुलाकात करोगे, फायदा होगा। और याद रखिए कि अल्लाह हक का बोलबाला करता है और बातिल का मुंह काला करता है। ये सारे वाकया का खुलासा है। दुआ है रब्बुल आलमीन से अल्लाह तबारक तआला हमें और आपको इन वाकयात से इबरत हासिल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम।